Hello students, this is again Shiv Misra from LBM Public School. Now we are again going to illustrate some more things about the parabola. In the last lecture we have seen something about the parabola, about the standard equation of parabola and how it's originated, how we form the equation that we have seen in the last lecture. Now we will see some more things and some more detail about the parabola. The basic structure of the parabola which we have seen in the last lecture, that was y square equal to 4x. Y square equal to 4x, and I have already mentioned to you about the y square equal to 4x. What we have told, what we have mentioned, or what we know already, that if y square equal to 4x we have to form. Since this y square means the parabola will be touching y-axis, and equal to 4x. Equal to 4x means it will be symmetrical in x-axis. It will be symmetrical in x-axis. This is the x-axis, x dash, y and y dash. Some more things we have studied. Understand that this parabola will have a particular focus point, and this focus point f will be known by a comma 0. Will be known by a comma 0, and this point, the vertex, will be 0 comma 0. This point will be known as the vertex, and that will be 0 comma 0. So f a comma 0 will be focus. So here again another point minus a comma 0 will be called as the coordinate of the directrix. Will be called as coordinate of directrix, and this directrix will be like this, and this equation will be x equals to minus a, or you can say x plus a equal to 0. That we have seen already in yesterday's lecture. In the last lecture we have seen this all thing. Some more thing we have seen. If you need to draw a lattice rectum, then this is called the lattice rectum, and this is known as lattice rectum. And extremities of the lattice rectum will be a comma plus minus 2a, means for here it will be plus 2a, and for here it will be minus 2. For here it will be plus 2a, and here it will be minus 2a. So the coordinate of here will be a comma plus 2a, and here it will be a comma minus 2. This distance will be known as lattice rectum, and lattice rectum will be equal to 4a. If we are giving a name a comma b, then this distance 4a will be similar to ab. AB will be known as lattice rectum, and this will be equal to 4. So some more things we can see, or if we need to find the focal distance will be this distance, and this distance will be called as a focal distance. And now we will see some more graphs, such as we have y square equal to minus 4x. Now for y square equal to 4x we have seen. Now y square equal to minus 4. Simply it means that it will be drawn touching the y-axis and bisymmetrical in negative direction of x-axis, and bisymmetrical in negative direction of x-axis. How it will be given? This will be x, this will be x dash, this will be y, and this will be y dash. This will be x, this will be x dash, this will be y, this will be y dash. Now we will see focus point of this coordinate will be minus a comma 0, minus a comma 0. Vertex will be 0 comma 0 again, 0 comma 0. Equation of directrix will be here. This coordinate will be a comma 0, and equation will be x equals to a, or you can say x minus a equal to 0. And what about lattice rectum? So lattice rectum will be again, this line will be called as lattice rectum, and it will be equals to 4a. Well, this is distance. It does not depend on the negative direction or positive direction. It depends only on the distance. What is the actual distance? So this distance is called as a lattice rectum. This is A and this is B. So this was B. Now for the next figure, you can see one more figure over here. X square equal to 4a. X square equal to 4a. That means that the parabola will be touching x axis
0, a, and the equation of direct coordinate will be 0, minus a, and equation will be y equals to minus a, or you can say y plus a equal to 0. The equation of direct will be y equal to minus a, or you can say y plus a equal to 0. Will be the equation of direct. Focus coordinate will be 0, a. Lattice vector again. This line will be called as the lattice vector, and the distance will be again as 4 evenly. Coordinate of direct is vertex position 0, 0, and the last figure. The equation will be x square equal to minus 4a y. x square equal to minus 4y, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस 4y, और x स्क्वायर x को टच करता हुआ है इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y. हाँ, फोकस कोऑर्डिनेट विल बी 0, a, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा 0, माइनस a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ क्या हो जाएगा 0, a. इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी y इक्वल्स टू a, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 0, 0, लेटर वेक्टर, ये लाइन भी कितनी होगी 4. क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट थे जो आपको पहले से लेके दूसरे फिगर, तीसरे फिगर, चारों फिगर देख के आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. कोई बोले आपसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x, मीन्स क्लियर है कि वो एक पैराबोला है और एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब एक्स को टच करता हुआ वाई एक्स में पैराबोला. पॉजिटिव 12x है तो वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और निगेटिव 12x है तो वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में. सो इस तरह से हम लोग चारों केसेस को पहचान लेंगे कि कब कौन सा पैराबोला फॉर्म होगा और वो पैराबोला कैसा दिखेगा. ठीक, सबसे पहला काम यही है तो आपको बेसिकली पहचानना आना चाहिए कि वो पैराबोला कैसा है. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फिर से बोलता हूँ मैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मीन्स y एक्स को टच कर रहा हुआ x में सिमेट्री. y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x मीन्स y को टच करता हुआ x माइनस सिमेट्री. 4a लेटर रेक्टम, a का कोऑर्डिनेट फोकस पॉइंट, 4a लेटर रेक्टम, a का कोऑर्डिनेट फोकस पॉइंट. इतना कहते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay मीन्स x को टच करता हुआ y में सिमेट्री, 4a लेटर रेक्टम, a फोकस का कोऑर्डिनेट. ठीक, x को टच करता हुआ y में सिमेट्री, 4a लेटर रेक्टम, a फोकस का कोऑर्डिनेट. ठीक, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इसका जस्ट रेसिप्रोकल साइन होगा. ऐसे सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ फिगर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay मीन्स एक्स को टच करता हुआ y में सिमेट्री बट माइनस 4ay, निगेटिव ऑफ y में सिमेट्री, फोकस है कोऑर्डिनेट a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल. ठीक, ये चार केसेस हो गए जिसको आपको डील करना था. ठीक, कुछ और डेप्थ में नॉलेज देखेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर. बिफोर दैट विल टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन ऑल द थिंग्स. Now next, suppose it is asked to you that particular point is inside the parabola or outside the parabola. Suppose it is given to you that y square equal to 4x is the standard equation of the parabola. Y square equal to 4x is the standard equation of the parabola, and a particular point is given to you 3, 4. Whether this point lies inside the parabola, on the parabola, or outside the parabola. Then what we will do? We have a concept which I have already mentioned to you, that y square minus 4ax less than 0. Y square minus 4ax less than 0 means the point lies inside the parabola. Point lies inside the parabola. Point lies inside the parabola. If y square minus 4x less than 0 means that the point will lie inside the parabola. Means point उस parabola के अंदर होगा. तो इस
फेस था जो यू शेप कर्व था, उस कर्व के अंदर होगा कहीं ना कहीं पॉइंट। ठीक, अब बोले दूसरा फिगर वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाए। अब क्या होगा, अब इक्वल टू 0 होगा, क्या मिलेगा, पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला, पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। पॉइंट कहां होगा, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा होगा, मतलब पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, पॉइंट कैसा होगा, पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा होगा। तीसरा के साथ है वाई स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या मिलेगा आपको, पॉइंट लाइज आउटसाइड, आउटसाइड द पैराबोला। पॉइंट कैसा होगा, अब वाई स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी आ गई, x और y के कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद से अगर 0 से बड़ा आ गया, तो पॉइंट कहां होगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला। जो पॉइंट होगा वो पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होगा, कहीं पॉइंट कैसा होगा, पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होगा। लेट अस चेक दिस पॉइंट 3,4। तो 3,4 y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू 3 है। सॉल्व कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12। सपोज कीजिए, सपोज a इक्वल्स टू 1 दिया होता तो 12 इंटू 1 हो जाता, 16 माइनस 12 4 आता। 4 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, 4 वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है मीन्स क्या होगा, पॉइंट विल लाई आउटसाइड द पैराबोला, उस यू शेप कर्व के बाहर कहीं पॉइंट लाई कर रहा होगा, उस यू शेप कर्व के बाहर कहीं कहीं पॉइंट लाई कर रहा होगा। ठीक, 4 ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट विल लाई आउटसाइड द पैराबोला। ठीक, I hope this point is clear to you. Now we will see one more thing, or we will see a question. Vertex of the focus of the parabola y square minus 4y minus 2x minus 8 equal to 0. Y square minus 2y minus 4x, y square minus 4y minus 2x minus 8 minus 4y minus 2x minus 8 equals to 0. It is asked to you that y square minus 4y minus 2x minus 8 equal to 0. This 4y minus 2x minus 8 equal to 0 is the equation of parabola. Find the vertex coordinate. Find the coordinate of vertex. So what we will do, we will just try to form a perfect square equation. So y square minus 4y आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हम लोग क्या करें, y square minus 4y। अब इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, y स्क्वायर का टर्म जो है पॉजिटिव होना चाहिए, है y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, तो 1 ही है, y स्क्वायर इंटू 1 है, कुछ नहीं है, तो y स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो y का कोफिशिएंट हो, जितना y का कोफिशिएंट हो इसका हाफ करेंगे, इस y कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 4 का हाफ होगा 2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए, 2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए, माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मिल गया। अब यहाँ से देखें तो y माइनस 4y प्लस 4 ये मिलके क्या हो जाएंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, बाकी रेस्ट को टर्म को उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या मिला, y माइनस 2 का होल स्क्वायर तीनों से, ये माइनस 2x और माइनस 4 माइनस 12 2x और प्लस 12 ये बन गया। इसमें से क्या करें, 2 कॉमन निकाल लें या 4 कॉमन निकाल लें, तो y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 4 कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, x बाई 2 प्लस 3, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x बाई 2 प्लस 3। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, मीन्स ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वर्टेक्स पॉइंट क्या है, तो मैं तो डायरेक्ट बता दूं यहाँ से, तो वर्टेक्स पॉइंट ये -2 है और यहाँ से देख बता देंगे। ठीक, फोकस पॉइंट क्या है वो बता लेंगे। ठीक, आप कैसे समझेंगे इस चीज को, इसके लिए मैं छोटा सा चीज बताता हूँ आपको कि यदि हमने अब तक देखा कि सारे के सारे इक्वेशन में जो वर्टेक्स पॉइंट था वो 0,0 था,
चारों के चारों इक्वेशन में जो वर्टेक्स पॉइंट था वो 0,0 था। अगर ये 0,0 के सिवा कुछ और होता यानी केस, तो वो इक्वेशन क्या बनती? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का यानी इक्वेशन था, और कोई वर्टेक्स 0,0 से हटा के हम h, k पे करते हैं, h, k, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन हो जाएगा y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a इंटू x माइनस h। y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h x माइनस h, मीन्स x वाले में तो x कोऑर्डिनेट माइनस कर लीजिए, y वाले में तो y कोऑर्डिनेट माइनस कर लीजिए। ठीक, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो कहलाता है पैराबोला की इक्वेशन। ठीक, अगर h, k को वर्टेक्स अप्लाई कर रहा था तो ये नए पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो वहां से देखना वो डायरेक्ट दिख रहा होगा ये कि -2 एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक, ऐसे ही फोकस निकालेंगे और रेस्ट ऑफ चीज करेंगे। तो ये काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल दैट आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और बाकी 3 कॉन्सेप्ट जो आज बताए, एक कॉन्सेप्ट जो कल बताया, और पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, उस चीज को समझें और एक्सरसाइज को सॉल्व करने का एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।